નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સત્તાનો સંગ્રામ અને હું છું આપની સાથે કૃષ્ણા। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો મિશન યુપી પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગ્રેટર નોઈડામાં શાહે ઘર ઘર પ્રચાર કર્યો, ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો। અમિત શાહે મિશન યુપીની શરૂઆત કરી। ઉલ્લેખનીય છે કે આખા દેશની નજર હાલ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પર છે, કારણ કે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ રહી છે, પરંતુ 403 બેઠકો ધરાવતી ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભાની ચૂંટણી પર સૌ કોઈની નજર છે અને તમામ પક્ષો આ ચૂંટણી જીતવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। ત્યારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આજે મથુરામાં પહોંચ્યા હતા, ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો હતો। તો तुगलपुर में अमित शाह ने जोवा माटे भीड़ उमटी हती। पश्चिमी यूपी पर हाल भारतीय जनता पार्टी जे भार आपी रही है, मथुरामां पण अमित शाहे घर घर प्रचार कर्यो हतो અને જે રીતે દ્રશ્યો દેખાયા હતા, ડોર ટુ ડોર પ્રચાર કર્યો, પરંતુ તે પહેલા એક નાની સભાને સંબોધિત કરી હતી અને આ સભામાં તેમણે અખિલેશ યાદવ અને માયાવતી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને ફરી એક વખત જનતાને 5 વર્ષ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા આપવા માટે તેમણે અપીલ કરી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સાથે સાથે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ અને યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ હાલ પશ્ચિમી યુપીમાં પ્રચાર કરી રહ્યા છે। તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીનું મિશન પંજાબ શરૂ થઈ ગયું છે। બીજી બાજુ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પંજાબની મુલાકાત લીધી, પ્રથમ પંજાબની યાત્રા કરી અને અમૃતસરમાં સુવર્ણ મંદિરમાં તેમણે દર્શન કર્યા હતા। આ ઉપરાંત પંગતમાં બેસીને લંગરનો પણ તેમણે આનંદ લીધો હતો। જલિયાવાલા બાગ જઈને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। જલંધરમાં વર્ચ્યુઅલ રેલીને પણ તેઓ સંબોધિત કરવા જઈ રહ્યા છે। તો રાહુલ ગાંધીની સાથે સાથે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ચરણજીતસિંહ ચન્ની અને પંજાબ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ નવજોતસિંહ સિદ્ધુ પણ એક સાથે દેખાયા હતા। આંતરિક જૂથબંધી નથી કોંગ્રેસની અંદર તેવો બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસ અત્યાર સુધીમાં 109 સીટ પર ઉમેદવાર જાહેર કરી દીધા છે। તો બીજી બાજુ એક તરફ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉત્તર પ્રદેશમાં પ્રચાર કરી રહી છે, બીજી બાજુ આજે પહેલી વખત કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી પંજાબમાં રેલી માટે પહોંચ્યા હતા અને તેમણે પ્રચાર કર્યો હતો। આ ઉપરાંત તેમણે સુવર્ણ મંદિરમાં પહોંચ્યા હતા, ત્યાં દર્શન કર્યા હતા અને પંગતમાં બેસીને તેમણે લંગરમાં પણ ભોજનનો આનંદ લીધો હતો। આપણી સાથે संवाददाता अजय यादव जुड़ाई गया है। अजय, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर ये 2 राज्यों पर ज्यादा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब है कि जहां का पूरा जो राजकीय चुनाव है, जो चुनाव समीकरण है, चुनावी समीकरण वो पूरे बदल गए हैं। क्या क्या हाल देखने को मिल रहा है? देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें आज चुनावी परिक्रमा का दिन है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ मथुरा वृंदावन बल्कि ग्रेटर नोएडा का दौरा एक तरह से किया। वहीं पर जो राहुल गांधी हैं वो पंजाब के दौरे पे गए और पहला उनका चुनावी दौरा है एक तरह से। खास करके पश्चिमी यूपी की बात करें तो पहले फेज का जो चुनाव है पश्चिमी यूपी में वो 10 फरवरी को होना है और पहले चरण में 56 विधानसभा सीटों को आना है और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 14 तारीख को होना है, 14 फरवरी को होना है और कुल 107 विधानसभा सीटें जो हैं यहाँ पर दांव पर लगी हुई हैं। तो एक तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी के दोनों फेज की अगर बात करें तो 80% से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था और एक बार फिर वही इतिहास दोहराने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है, क्योंकि अमित शाह को पश्चिमी यूपी की कमान दी गई है। पश्चिमी यूपी का कमान देने का मतलब है कि जब किसान आंदोलन चला था तो उस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के जहां के किसानों ने अपनी शिरकत की थी उसमें पश्चिमी यूपी के किसान थे और खास करके जाट समुदाय की भागीदारी इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा थी। हालांकि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि जाट मतदाता खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए, कि बिना जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में किए बिना भारतीय जनता पार्टी 2017
2017 के जो विधानसभा चुनाव की जो जीत है उसको नहीं दोहरा सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 253 से ज़्यादा जो जाट लीडर्स थे उनकी दिल्ली में एक बैठक हुई और कहा जा रहा है कि जाट मतदाताओं को लुभाने में गृह मंत्री अमित शाह कामयाब हुए हैं। और उसी के दूसरे दिन मथुरा और खास करके वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी का उन्होंने दर्शन किया और मथुरा में एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। हालांकि जिस इंडोर स्टेडियम में उन्होंने संबोधित किया, करीब 300 से ज़्यादा लोग वहां पे शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स थे। वहां पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अमित शाह ने जमकर हमला बोला और साथ ही साथ ये कहा कि जब मायावती या अखिलेश यादव का शासन था तो गुंडा राज पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता था, लेकिन योगी शासन के अंतर्गत गुंडा राज को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। साथ ही साथ इसमें अमित शाह की तरफ से आजम खान का भी जिक्र आया और यह कहा गया कि अखिलेश राज में आजम खान का जिस तरह का उत्पात था उनके ऊपर जब योगी प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा गया तो जितनी भी धाराएं हैं वो कम पड़ गई। तो एक तरह से अखिलेश यादव और मायावती को साथ साथ घेरने की कोशिश की, वहीं पर मथुरा की जनता को लुभाने की भी कोशिश की कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। और साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा के उस दादरी इलाके में गए जहां पे जाट मतदाता बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहां पर अमित शाह की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन किया गया। हालांकि पश्चिम यूपी में जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी दौरा था और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा था। वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब में राहुल गांधी के दौरे की बात करें तो अब तक पंजाब में 109 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है 65 विधानसभा सीटों पे पंजाब में लड़ रही है। लेकिन इस बीच कयास लग रहे थे कि क्या पंजाब में स्थानीय नेताओं के सहारे ही कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या गांधी खानदान से कोई लीडर यहाँ पे प्रचार करने के लिए आएगा। तो उस कयासों को आज राहुल गांधी के दौरे के रूप में विराम लग गया। राहुल गांधी न सिर्फ अपने 109 उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर गए, मत्था टेका, लंगर खाया, बल्कि वहां पे वाल्मीकि मंदिर का भी दर्शन किया और साथ ही साथ ये मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस में जो उठापटक मची है उस पे एक तरह से विराम लग गया है। चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू दोनों राहुल गांधी के साथ दिखे। हालांकि जो मनीष तिवारी सहित जो 5 सांसद है पंजाब से जो कांग्रेस के, वो इस दौरे में नहीं दिखाई दिए। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि चूंकि सिर्फ उम्मीदवारों को इन्विटेशन दिया गया था, सांसदों को इन्विटेशन नहीं दिया गया था, इसी वजह से सांसद नहीं दिखाई दिए। तो फिलहाल दोनों राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी तरह से वो अपने जो बीजेपी शासन है उसको एक बार फिर सत्ता में लाएं, वहीं पर राहुल गांधी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि महज 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें महज एक राज्य है पंजाब, जहां पर अभी भी कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा है और राहुल गांधी पे यही जिम्मेदारी कि एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस का शासन आए। तो फिलहाल दोनों जगहों पर, एक जगह भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो दांव पे लगी हुई है, वहीं पर पंजाब में कांग्रेस की सत्ता दांव पे लगी हुई है। जी बिल्कुल अजय, जुड़े रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे। तो हाल जे रीते બંને રાજ્યોમાં ચૂંટણી પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, તો સમાજવાદી પાર્ટીએ વધુ 56 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે। ભાજપમાંથી આવેલા દારાસિંહને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। દારાસિંહ ચૌહાણને મૌની ધોસી બેઠક પરથી મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે। તો આઝમગઢ બેઠક પરથી દુર્ગા પ્રસાદ યાદવને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે। દુર્ગા પ્રસાદ યાદવનો આ ગઢ રહી છે આઝમગઢ બેઠક। તો ફૂલપુર બેઠક પર મુર્તઝા સિદ્દીકીને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે। મુર્તઝા સિદ્દીકી અને અત્રોલિયા પર સંગ્રામસિંહ યાદવને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। તો સમાજવાદી પાર્ટી દ્વારા આજે વધુ કેટલાક ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેમાં આઝમગઢ બેઠક પરથી દુર્ગા પ્રસાદ યાદવને મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે કે જેઓ સતત આ બેઠક પરથી જીતતા આવ્યા છે। સમાજવાદી પાર્ટી આજે વધુ 56 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી અને તેમાંથી ભારતીય जनता પાર્ટીમાંથી આવેલા દારાસિંહ ચૌહાણને મૌની ધોસી બેઠક પરથી મેદાને ઉતારવામાં આવ્યા છે। ભાજપમાંથી 3 મંત્રીઓ સમાજવાદી પાર્ટીમાં સામેલ થયા હતા અને તેમાં દારાસિંહ ચૌહાણનો પણ સમાવેશ થાય છે। દારાસિંહ ચૌહાણને પણ સમાજવાદી પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે। તો यूपीમાં મતદાન નજીક આવતા જ નેતાઓના બફાટ શરૂ થઈ ગયા છે। મથુરાથી આરએલડીના ઉમેદવાર તેજપાલ ઠાકુરના વિવાદિત બોલ સામે આવ્યા છે। ભાજપના ઉમેદવાર લક્ષ્મીનારાયણના હાથ કાપવાની તેમણે ધમકી આપી દીધી। કાનપુરથી બીજેપી એમએલએ મહેશ ત્રિવેદીનો બફાટ સામે આવ્યો। તેમણે વિપક્ષના લોકોને લાઠી દંડાથી મારવાની સલાહ આપી। તો અમરોહાથી સપા ઉમેદવારોએ પોલીસને જ પડકાર ફેંકી દીધો। મુખ્ય ગુર્જરે કહ્યું કે પ્રશાસનની એસી કી તૈસી।
16 વખત જેલ જવાનું ગૌરવ લેતા જોવા મળ્યા મુખ્ય ગુર્જર। તો ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, પરંતુ આ નેતાઓ કે જેઓ જનતાના પ્રતિનિધિ બનવાની એક બાજુ વાતો કરી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ આ જ નેતાઓ વિવાદિત નિવેદનો આપી રહ્યા છે। કોઈક વિરોધ પક્ષના નેતાને મારવાની વાત કરી રહ્યું છે, તો કોઈક પોલીસને પડકાર ફેંકી રહ્યો છે, તો કોઈક તંત્રને પડકાર ફેંકી રહ્યું છે। મુખ્ય ગુર્જર કહી રહ્યા છે કે પ્રશાસન કે ऐसी की तैसी આ નેતાઓને જાણે કે પ્રશાસનથી કોઈ ફરક જ નથી પડતો તેવા નિવેદન આવી રહ્યા છે। તો સત્તાના સંગ્રામમાં આપણે દરરોજ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠકની વાત કરીએ છીએ, તેના રાજકીય સમીકરણો શું હોય છે તેના પર વાત કરીએ છીએ। આજે આપણે વાત કરીશું સરોજની નગર વિધાનસભા બેઠકની। તો આ બેઠક ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ જિલ્લામાં આવતી બેઠક છે। આ બેઠક વિધાનસભા 1967માં અસ્તિત્વમાં આવી હતી અને શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારને મેળવીને આ સીટનું અસ્તિત્વ આવ્યું હતું, સીટ બનાવવામાં આવી હતી। શરૂઆતમાં જ્યારે આ બેઠક અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આ બેઠક પર દબદબો રહ્યો હતો અને રાજા વિજયકુમાર ત્રિપાઠી 5 વખત આ બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતી આવ્યા હતા સરોજની નગર પર। 1977માં જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો હતો અને જનતા પાર્ટીમાંથી છેદા સિંહ એમએલએ બન્યા હતા। આ એ સમય છે 1977નો સમય કે જ્યારે કટોકટીના સમય બાદ જનતા પાર્ટીનું અસ્તિત્વ ઉભરી આવ્યું હતું અને એ સમયે जनता पार्टीमांथी छेदा सिंह आ बैठक परथी धारासभ्य बन्या हता, परंतु तेमना निधन बादनी उपचूंटणीमां कांग्रेसनी जीत थई हती। तो अपनी साथे संवाददाता अजय यादव जोड़ायेला छे। अजय, सरोजनी नगर विधानसभा बैठक की हम बात करें तो क्या राजकीय गणित है इस बैठक का? देखिए, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में करीब 5-6 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उसमें एक गोरखपुर सदर है जहां पर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, करहल सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पडरौना जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़ने की संभावना है और खास करके कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल आरपीएन सिंह के भी वहां से लड़ने की संभावना है। इसी तरह कैराना जहां से हिंदुओं के पलायन का जिक्र आता है, वो सीट भी हॉट बनी हुई है। और अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस विधानसभा सीट की हो रही है वो सरोजनी नगर है। सरोजनी नगर विधानसभा सीट में सबसे अधिक चर्चा आने की वजह यही है कि वहां से स्वाति सिंह, जो कि अभी फिलहाल एमएलए हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में 1,08,000 वोट पाकर के उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनुराग यादव को करीब 34,000 वोटों से हराया था। हालांकि स्वाति सिंह का राजनीति में आना भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि 2016 में मायावती पे एक बेहद व्यक्तिगत टिप्पणी करने की वजह से स्वाति सिंह के जो पति हैं दयाशंकर सिंह, वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए थे बल्कि उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बाद में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर सिंह को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन अब जो सरोजनी नगर सीट है वहां से पति पत्नी यानी स्वाति सिंह, जो कि दयाशंकर सिंह की पत्नी है, जो मौजूदा एमएलए हैं, वो खुद वहीं से दावेदारी अपनी ठोक रही हैं। वहीं पर दयाशंकर सिंह भी सरोजनी नगर सीट से अपना उम्मीदवारी चाहते हैं। दोनों उम्मीदवारों की तरफ से कह सकते हैं कि संभावित उम्मीदवारों की तरफ से पूरे सरोजनी नगर में पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं। और इस बीच स्वाति सिंह की तरफ से एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ये कहीं न कहीं पता चलता है कि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं है और जब से स्वाति सिंह विधायक बनी है तब से पति पत्नी के रिश्ते खराब है, दोनों अलग रह रहे हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट है कि दोनों जो संभावित कैंडिडेट है उसमें किसको टिकट दिया जाए। हालांकि संभावना यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि पति पत्नी के झगड़े में भारतीय जनता पार्टी का कोई तीसरा लीडर यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों नामों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, चौथे चरण में वोटिंग होनी है। जहां तक सरोजनी नगर सीट का सवाल है तो यहां पर 5.5 लाख वोटर है, जिसमें अकेले 65,000 से ज़्यादा वोटर राजपूत समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय से स्वाति सिंह या दयाशंकर सिंह आते हैं। इसी तरह से 60,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, 45,000 जो वोटर हैं वो यादव समुदाय से आते हैं और 80,000 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। फिलहाल इस सीट के बारे में बात करें तो 6 बार से ज़्यादा वक्त तक कांग्रेस का इस विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है। 3 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, 2 बार बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब दयाशंकर सिंह को लेकर के
विवादित टिप्पणी हुई थी, तब उनकी पत्नी जो कि राजनीति में नहीं थी, एक घरेलू पत्नी थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया सरोजिनी नगर से और वो वहां से जीती। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि पति पत्नी के झगड़े में कहीं कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी ये सीट गंवा न दे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और वही इस बार दोहराने की सोच रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन फिलहाल इस विवाद के कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा असमंजस यही है कि आखिर स्वाति सिंह को टिकट दिया जाए या उनके पति दयाशंकर सिंह को दिया जाए, जबकि दयाशंकर सिंह लगातार दिल्ली के जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ लगातार जुगत लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सीट उनको मिले, उनकी पत्नी को न मिले, जबकि उनकी पत्नी भी जो है योगी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और लगातार अपने परफॉर्मेंस के बेस पे उस सीट पे अपना दावा ठोक रही हैं। तो हालांकि इन दोनों पति पत्नी में से किसको ये टिकट मिलेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यह सीट पति पत्नी के विवाद की वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा का विषय बनी हुई है। जी बिल्कुल अजय, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।